ریاست کے تمام تر اضلاع اور شہد آباد میں بھی ٹفن سینٹرز کی بڑھتی تعداد نے تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تشویش کی بات تو یہ ہے کہ اب شہر میں بچوں کو ان کے ٹفن سینٹروں سے اڈلی، ڈوسا، اوڑا دینے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف بچے غذائیت سے محروم ہو رہے ہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ کند ذہنی بچوں کی نشوونما پر اثر انداز ہو رہی ہے اور ان کی تعلیم پر بھی کافی منفی اثر پڑ رہا ہے۔ شہد آباد اور ریاست میں گھروں میں صبح کے ناشتے کی تیاری سے گریز کے اس رجحان نے اب تشویشناک شکل اختیار کر لی ہے، اور ہمارے نمائندے فہیم انصاری نے اس سلسلے میں ڈاکٹرز اور دیگر لوگوں سے بھی بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ٹفن سینٹرز کی غذائیں بچوں کی صحت کے لیے کتنی فائدہ مند اور کتنی زیادہ نقصان دہ ہیں، اور اب یہ رجحان نئی نسل کے بچوں کی صحت اور ان کے مستقبل کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر محمد عبدالمجید ہے۔ میں کمس ہاسپٹل میں میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں ڈیف اینڈ ڈم پیشنٹس کو دیکھتا ہوں، اور پرو کلینک میں بھی میرا تشخیص کرنے کا سینٹر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل جو ٹفن سینٹر، جو اڈلی ڈوسے کے ٹفن سینٹر چل رہے ہیں، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس رائے سے ہمیں بتائیے کہ عوام کو اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ جی صاحب، یہ ٹفن سینٹرز میں جو غذائیں مل رہے ہیں تو وہ نامکمل ہے غذائیں، کیونکہ پوری غذائیت کے لیے بیلنسڈ ڈائٹ، متوازن غذا کا ہونا ضروری ہے، جس میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹس، وائٹامنس اور منرلز اور واٹر کنٹینٹ بھی رہنا چاہیے، یعنی پانی بھی زیادہ پینا چاہیے۔ تو اب یہ جو اڈلی اور وڑا اور یہ نامکمل اور نامتوازن غذا ہے، اس سے غذائیت پوری نہیں ہوتی، اور غذائیت پوری نہیں ہونے کی وجہ سے بچوں کے اندر وائٹامنس کی کمی ہو سکتی، ان کے رشد و نما میں بھی تاخیر ہو سکتی، دماغی صلاحیت کمزور ہو سکتی، بدن میں قوت مدافعت بھی کم ہو جاتی، پروٹین انرجی مال نیوٹریشن ہو سکتا ہے ان کے اندر، اور ریکیٹس جیسی بیماری بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہڈیوں کا نرم ہو جانا اور مڑ جانا، اور پھر اینیمیا کا ہو جانا، آئرن کنٹینٹ بھی نہ رہنے کی وجہ سے، جیسا کہ فار ایگزامپل ایک لڑکے کے لیے روزانہ 1400 کیلوریز کی ضرورت پڑتی، اور اڈلی میں صرف 35 کیلوریز ہی رہتے، تو نامکمل ہے، اور پروٹینز تقریباً 20 to 30 گرامز پروٹین کی ضرورت رہتی، اور ایک اڈلی کے اندر 1 گرام بھی پروٹین نہیں رہتی۔ اس کی وجہ سے نامکمل غذا ہونے کی وجہ سے بچوں کے اندر بیماریاں بار بار آ سکتی، بچہ کمزور ہو جا سکتا، اور جسمانی اعتبار سے بھی صحیح اس کی تعمیر نہیں ہو سکتی، اور لو ویٹ ہو سکتا، انڈر ویٹ ہو سکتا، اور ان کا قوت مدافعت بھی کم ہو جاتا، جس کی وجہ سے بیماریاں بار بار اثر کر سکتی، اور جلدی شفا یاب نہیں ہوتے بچے، زخم ہوا تو جلدی نہیں سکتا، اینیمک ہو جاتے بچے، اور دماغی اعتبار سے بھی کمزور ہو جاتے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ سر، یہ کیا وجہ ہے صبح کے ٹائم میں یا کبھی بھی فوڈس جو استعمال کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ تو یہی ہے کہ یعنی لیزینس اور اگنورینس بھی بول سکتے ہیں، کہ لا علمی کی وجہ سے، اور زندگی کے اندر بہت سارے آسانیاں پانے کے لیے سستی کاہلی کی وجہ سے یہ باتیں ہمارے قوم کے اندر پیدا ہوگی۔ حالانکہ قدرتی اعتبار سے اللہ کا نظام ہے کہ یعنی صبح 5 بجے سے اللہ کا منادی مؤذن حی علی الفلاح کی طرف، نماز کی طرف بلاتے ہیں، اور ہماری قوم سوتے پڑے رہتی، راتوں میں 12 2 بجے تک جگتے رہتے، اور صبح عین فجر کے وقت سو جاتے، 8 9 10 بجے اٹھتے، تو بچے اب ناشتہ کیا کرتے، ٹائم ہی نہیں رہتا ماں کو تیار کرنے کے لیے، بس وہ ریڈی میڈ یہاں سے وہاں سے اڈلی بالکل ان ہائیجینک ہے، اور ہر اعتبار سے یعنی اس کے اندر صاف صفائیت نہیں رہتی، ویسی چیزیں بچوں کو کھلا کے بھیج دیتے، اور ہر اعتبار سے نامکمل ہے، نہ اس کے اندر پروٹینز برابر ہے، نہ وائٹامنس ہے اس میں، نہ کاربوہائیڈریٹس جتنے ہونے چاہیے اتنے ہیں، اس طرح سے نامکمل ہونے کی وجہ سے بچوں کی عین تعمیر کا وقت ہے، جو بنیادی صحت بنانے کی زندگی ہے،
उसी के अंदर जो है झोल आ जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जवानी पे भी असर पड़ेगा और बुढ़ापे के अंदर भी असर पड़ेगा। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पेरेंट्स है, माँ बहुत ज्यादा जिम्मेदार है इसकी, है ना। अब हम जो है अगर गैर कौम से कंपेयर करें तो उनकी सुबह जो है 3:30 बजे 4 बजे सुबह से हो जाती है, जो धोना, घर का साफ सफाई, बच्चों को तैयार करना, बच्चों के लिए खाना वगैरह देना, और वो कौम आगे बढ़ी, हर मैदान में आगे बढ़ी। और हमारी कौम जो है पढ़ाई के अंदर जो स्टार्टिंग जो कुरान की आयत आई कि पढ़ो बोल के, यानी पढ़ाई के ऊपर इतना जोर दिया गया, और हम जो अशरफुल मखलूकात महज इसलिए बने कि जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमको इल्म की दौलत से नवाजा, और इंसान की कदर कीमत यानी जितना उसके अंदर इल्म आते जाएगा उतनी उसकी कदर कीमत बढ़ते चलेंगी। अब इसी वजह से ये कोताही की वजह से और जो है काहली की वजह से, सुस्ती की वजह से और फजर की नमाज को खदा करने की वजह से ये सब मुसीबतें घरों के अंदर आ रही हैं। तो इसके एतबार से जो है साइकोलॉजी की एतबार से भी बच्चे की जो है सही तरबियत नहीं हो रही, सही रुश्तो-नुमा नहीं हो रही, दिमागी एतबार से भी कमजोर हो जा रहा है, फिजिकली भी कमजोर हो जा रहा है, रूहानी एतबार से भी, हर एतबार से जो है उसके अंदर कमजोरियां आ जा रही, और पढ़ाई में भी पीछे रह जा रहा है, और बहुत सारे जो है ड्रॉप आउट भी हो जा रहे हैं हमारे कौम के अंदर। तो इसके अंदर जो है एक बेदारी लाना है कौम के अंदर कि भाई सुबह फजर की नमाज खजा मत करो, आप फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो है कामों में लग जाओ, इतनी बरकत देगा अल्लाह रब, इतनी बरकत देगा हम सोच नहीं सकते। बच्चे जो है यानी अपनी कौम को लेके, आज के बच्चे कल के रहनुमा बनेंगे, कौम के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे, कौम को लेके आगे बढ़ेंगे। जब तक बच्चे सेहतमंद तंदुरुस्त नहीं रहेंगे ये सब काम में पीछे ही रहेंगे, हर मैदान में पीछे रहेंगे। मजमूई तौर से माँ की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल माँ की जिम्मेदारी है। मैं जो है ये अदबन दरख्वास्त करूँ कि वो इशा की नमाज के बाद फौरी बच्चों को भी सुला दें, खुद भी सो जाए, और सुबह फजर के साथ जो है बच्चे भी उठ जाए और अपना होमवर्क कर ले, पढ़ाई कर ले, और माँ जो है इनकी तरबियत के वास्ते और इनके खाने का इंतजाम वगैरह अच्छी तरह से करके उनको जो है यानी बेहतरीन से बेहतरीन ग़िज़ा खिलाए। और ग़िज़ाइयत के अंदर यानी गोश्त है, मछली है, अंडा है, दूध है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सब देने से बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी, उसकी आंखों की बीनाई तेज होंगी, हाजिमा अच्छा होगा, उसका वेट जो है सेहतमंद रहेगा, दिमागी एतबार से भी ज़हीन होगा। फिश खिलाने से जो है और उसके अंदर फास्फोरस रहने की वजह से दिमागी सलाहियत बढ़ जाती। तो ये कंप्लीट फूड देना चाहिए, बैलेंस डाइट, मुतवाज़िन ग़िज़ा देना ज़रूरी है। खाली इडली डोसा देने से जो है ज़हनी एतबार से कमज़ोर, दिमागी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, हर एतबार से कमज़ोर हो जा रहा है बच्चा, और इसका असर पूरी कौम पे पड़ा। पूरी कौम जो है ये कंपटीशन के दौर के अंदर पीछे रह जा रही। तो इसे आदमन दरख्वास्त है कि माएँ जो है इसकी तरफ देखिए साहब, सबसे पहले कोरोना वायरस की वजह से हमारे लोगों की और हमारे कारोबार करने वाले हजरात की जो है ना मईशत इंतहाई कमजोर हो चुकी है। कोरोना वायरस के बाद लोगों के हालात बहुत बद से बदतर हो गए थे। लोगों में आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सुधार आने के बाद लोग जो है ना छोटे छोटे कारोबारों में जो है ना कारोबारों के लिए जो है ना लोग चलने के लिए जो है ना ठेला बंदी, चाय का स्टॉल और टिफिन सेंटर का जो है ना बुक करने लगे। तो लोगों में एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि जो है ना लोगों में खाने के लिए कम वक्त में जल्दी जो चीजें मिल सकती है वो टिफिन सेंटर। तो उसमें लोग जो है ना ज्यादा मुब्तला और उसकी तरफ ज्यादा रुख करते गए टिफिन सेंटर की तरफ। आजकल क्या है, होटलों में और दूसरी चीजों में जो है ना लोग ज्यादा पैसे खर्च करने के बजाय कम पैसों में जो ग़िज़ा मिल रही है वो टिफिन सेंटरों में मिल रही है आसानी से और जल्द से जल्द। ये चीजों में लोगों में जो है ना हमारे कारोबार करने वाले हजरात में जो है ना टिफिन सेंटर का रुझान ज्यादा हो गया। और इसके अलावा भी लोगों में जो है ना आजकल के नौजवान बच्चों में और आजकल की नौजवान पीढ़ी में ये चीज का रुझान ज्यादा हो गया है कि रातों में खाना खाना, रात देर तक जगना और फोनों पे जो है ना ज्यादातर वक्त गुजारना। तो ये ज्यादा वक्त फोनों में गुजारने से, सोशल मीडिया आने से और लोग जो है ना उसमें ज्यादा मशरूफ होने की वजह से इनकी नींद ठीक नहीं हो रही है, एक चीज। दूसरी चीज, रातों में जल्द नहीं सो रहे हैं लोग और सुबह सवेरे जल्द नहीं उठ रहे हैं।
ये। और रातों में जितनी देर तक आप जगेंगे, लोगों में जो है ना भूख का जो है ना ज्यादा भूख लगते जाएंगे। तो ये लोग जो है ना बच्चे या बड़े हजरात जो भी ज्यादातर वक्त जो रात में गुजार रहे हैं, तो ये टिफिन सेंटर का रूट जो है ना रातों में चल रहा है। और एक चीज इसके पीछे ये कॉल सेंटर जो चल रहे हैं आजकल, रातों में नाइट शिफ्ट करने वाले भी टिफिन सेंटर की तरफ ज्यादा रुख दे रहे हैं। ये तो टिफिन सेंटर का जो है ना हैदराबाद सिकंदराबाद में ज्यादा चलन चल रहा है टिफिन सेंटर का। रातों में सुबह सुबह 4 बजे तक भी आपको जो है ना नाश्ता, इडली, वड़ा, डोसा दस्तियाब कभी भी मिल सकता है आपको। और एक चीज, ज्यादातर रात में बच्चे जागने से और फोनों पे जो है ज्यादातर वक्त गुजारने से बच्चे सुबह सवेरे जो है ना स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह सवेरे जल्द नहीं उठ पा रहे हैं। और खवातीन भी जल्दी जो है ना रातों में फोनों में वक्त ज्यादातर देने से जो है ना वो भी सुबह जल्दी नहीं उठ रही है। और एक चीज, सुबह सवेरे जल्दी नहीं उठने से जो है ना बच्चों के लिए घर में नाश्ता जो है ना ज्यादातर आज के दौर में जो है ना ज्यादातर लोगों में घरों में नाश्ता तैयार नहीं हो रहा है बच्चों के लिए। इसके लिए ऑनलाइन आप नाश्ता मंगा रहे हैं या बच्चों को पैसे दे के जो है ना करीबी होटल से या टिफिन सेंटर से जो है नाश्ता जो है ना मंगा के बच्चों को नाश्ता, इडली, डोसा जो भी है वो दे के वही जो है ना नाश्ता बच्चों को टिफिन में जो है ना दिया जा रहा है। साबिका में किस तरह का रहता था? साबिका में जब हम पढ़ते थे स्कूल में, तो घर में जो है ना फजर की नमाज के बाद, फजर पढ़ने के बाद जो है ना कुरान पढ़ने के बाद 7 साढ़े 7 तक अपना जो वक्त था 7:30 तक, उसके बाद जो है ना घर में जाने के बाद वालदा बहन जो भी है हमारे को जो है ना नाश्ता रेडी होगा, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल या अंडा जो भी है तो खा के हम जो है ना नाश्ता 8:30 बजे तक स्कूल में पहुंच जाते थे। और वही नाश्ता जो है ना हमको टिफिन में दिया जाता था, जिससे हमारी सेहत भी जो है ना रोक पाती थी और तशफ़ी बख्श जो है ना ग़िज़ा हमको मिलती थी। आज के दौर में बच्चों को तशफ़ी बख्श जो है ना ग़िज़ा नहीं है, बस पेट भरने के लिए जो है ना नाश्ता मिल रहा है, लेकिन जिससे जो है ना जिस्मानी नशोनुमा और जिस्मानी निगहदाश्त जो है ना बच्चों की ठीक नहीं हो रही है। एक चीज, दूसरी चीज क्या है, बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा नाश्ता ठीक नहीं मिलने से ये स्कूल में जो है ना ठीक तरह से जो है ना अपने आप को जो है ना जिस्मानी नशोनुमा इनकी ठीक नहीं हो रही है, जिसके लिए हमारी घरेलू खवातीन की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को जो है ना सुबह जल्दी उठा के जल्दी रात में जल्दी सुला के सुबह जल्दी सवेरे उठा के उनके लिए नाश्ता रेडी करें। सब्जी, तरकारी, अंडा, दाल जो भी है प्रोटीन वाली ग़िज़ा जो भी मिल रही है उनको दी जाना चाहिए। और वही नाश्ता जो है ना बच्चों को टिफिन में देने से उनकी जिस्मानी नशोनुमा, जिस्मानी निगहदाश्त में जो है ना इजाफा होगा। और उसके लिए जब तक इंसानी जिस्मानी नशोनुमा ठीक नहीं होगी, उसका असर उसकी सेहत पे पड़ेगा, तो उसका असर उसकी तालीम पे भी पड़ेगा। में किस तरह की ग़िज़ा चाहिए आपके रुझान के हिसाब से बच्चों के लिए सुबह के नाश्ते में? मेरे सर की जो है ना एक राय ये है कि आज की माओं के लिए और हमारी बहनों के लिए कि वो सवेरे जल्द उठे, बच्चों के लिए तशफ़ी बख्श प्रोटीन वाली ग़िज़ा, रोटी, सब्जी, दाल, अंडा जो घर में जो दस्तयाब है वो बच्चों को दी जानी चाहिए। और बच्चों के लिए वही नाश्ता तैयार होना चाहिए जिससे जो है ना बच्चे अच्छी ग़िज़ा खाकर, अच्छी ग़िज़ा लेकर जो है ना तालीम, जिसके लिए जो है ना उनकी सेहत पे भी उसका असर हो और उसका तालीम पे भी असर हो। मौजूदा हालात में हिंदुस्तान की मैशियत बहुत मुतासिर है। इससे जो है ना बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ने की वजह से लोग जो है ना टिफिन सेंटर खोल ले रहे हैं, जिससे इडली, वड़ा जो भी है बना के बेच रहे हैं। तो उसके अलावा जो है ना आजकल इंटरनेट का दौर आया है, जिससे मोबाइल फोन वगैरह देख के रात भर जो है ना हमारी खवातीन दिन में देर से उठने से वो इडली वड़ा टिफिन सेंटर से ला लेके बन के भेज रहे हैं उनको बच्चों को, जिससे बच्चों की सेहत मुतासिर हो रही है। और जो है ना दोपहर तक बच्चा निराला जा रहा है, तालीमी मतलब वो दिमागी हालत बहुत कमज़ोर होती जा रही है उसकी, इससे तालीम पे असर पड़ा है। इसके अलावा जो है ना हमारे दौर में हमारे वालिदैन जो है ना हमको फजर की नमाज को उठाते थे, फजर की नमाज पढ़ के आने के बाद तिलावत होती थी कुरान की, उस दौरान जो है ना टिफिन तैयार होता था, जैसे अंडा, खिचड़ी, रोटी और घी, तरकारी वगैरह का बना के हमको खिलाते भी थे और टिफिन में बन के देते थे।
स्कूल जाकर शाम तक भी हम घर को आए तक हमारे पास कुव्वत होती थी, जिससे हमको तालीम मिलती थी और मुस्तकबिल में भी अच्छा हम मिला हमको। जी हाँ, अब मौजूदा हालात में जो है ना, बच्चों को सही ग़िज़ा नहीं मिलने से उनकी सेहत कमज़ोर होती जा रही है, तालीम पे असर पड़ रहा है। हाँ, और मेरी अदमन गुजारिश ख़वातीन से है कि वो जल्दी उठकर जो है ना बच्चों को टिफ़िन बना कर दें, खिलाएँ भी, टिफ़िन में बन के दें, अंडा रोटी खिचड़ी जो भी है बना के दें, आने तक भी उनको अच्छी खोज मिलती, प्रोटीन मिलती है उनको। मेरी अदमन गुजारिश है कि इस तरह से, और मैं बाहर का जो खाना है ना, होटलिंग का, बिल्कुल इसको अवॉइड करें।